is one state, one of the most beautiful state of India. मिजोरम का एक यह है कि मिजोरम एक तरफ उसको म्यांमार अब बोलते हैं, वैसे बर्मा से उसको तीन तरफ से घेरता है। एक तरफ उसके मणिपुर है और मणिपुर की मिजोरम की विधानसभा इलेक्शंस आर आल्सो ड्यू अगले मेरे ख्याल में सबसे पहले मिजोरम है। यस, नहीं, मिजोरम इज ऑन 3rd इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, नहीं, ऑन 7th मिजोरम से शुरू हो रहा है। मिजोरम के बारे में मैं थोड़ा ये बता दूं कि मिजोरम में दो पार्टीज की ज्यादा सरकार रही है, मिजो नेशनल फ्रंट MNF और कांग्रेस। 2018 से पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर MNF की सरकार आ गई। MNF के वहां टोटल 40 सीट्स हैं, उसमें से 26 सीट पे MNF जीती और कांग्रेस 5 सीट पे रह गई, बीजेपी 1 सीट पे और ZPM वो 8 सीट पे है। इस बार बहुत से लोगों को ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह का मामला बन रहा है उसमें शायद हंग असेंबली आए। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी हो रहा है कि मिजोरम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सारी जगह पे अपने फेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना, उन्होंने कहा है कि मेरे फेस पे इलेक्शन होगा। उन्होंने लोकल लीडरशिप को बिल्कुल किनारे कर दिया है। मिजोरम में वो क्या करेंगे ये जरा इंटरेस्टिंग है सोचना, क्योंकि हम सब लोग, पूरा देश ये देख रहा है कि वो मिजोरम में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर वहां मिजोरम में जाते हैं तो उनको मणिपुर के ऊपर बोलना पड़ेगा। मणिपुर पे वो नहीं बोल रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं कि जैसे मणिपुर में कुछ हो रहा है। अगर बोलते हैं तब दिक्कत है, नहीं बोलते हैं तब दिक्कत है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो मिजोरम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अगर मिजोरम जाएंगे तो मणिपुर से पे उनको बोलना पड़ेगा। मैं इस चर्चा की शुरुआत, मेरे साथ डॉक्टर रिनी लाल्टे हैं। शी इज एन एक्टिविस्ट, शी इज फ्रॉम आइजोल और शी नोज, आई मीन शी विल बी टेलिंग अस मोर ऑफ अ मिजोरम, द प्रॉब्लम्स ऑफ मिजोरम। डॉक्टर लाल्टे, वेलकम इन दिस शो। मैं दर्शकों को बता दूं, वो जनरली अंग्रेजी में बोलेंगे और आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं प्रश्न हिंदी में पूछ लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास अमित जी हैं और धनंजय जी हैं, ये लोग हिंदी बोल लेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। डॉक्टर लाल्टे, फर्स्ट ऑफ ऑल, just give me a brief idea on what are the issues of election in this Vidhan Sabha in Mizoram. Is it only the Manipur violence which is dominating that, or it is the refugees which are coming from trans-border, from the Burma side, the refugees which are coming from Manipur side, that is also making life difficult for the Mizoram people, but they are still sustaining, they are still supporting them, caring them, giving them, doing what best they can do. Give us some picture of Mizoram, and then we open the discussion. Dr. Lalte. Hi everyone. I don't know exactly what to say, especially I'm not capable enough in order to give the political analysis because I'm new. I'm retired from Bangalore, and then I'm here only for 2 years, and then 1 year was still in that COVID lockdown period. So actually, I have been out only for a year now. So in that 1 year experiences, certainly I can give my own insight, and certainly this may not be giving you a full picture on the reality as well. And for the next talk, certainly I can introduce to you another person who can give you a better overview of that. But keeping in mind that as an initial discussion about the upcoming election is scheduled in November 7, actually most of the comments we receive is that it is very surprising because notice is only for 29 days. Earlier it used to be like 50 plus 60, almost 60, almost 2 months notice has been given. So most of the party are not well prepared, and some of them, especially Congress party, has not announced the seat
what is that, constituency and the seat allotment and all. So only the regional party ZPM has announced first in July, and then MNF, the ruling party, the present ruling party, announced only like a week ago, and the Congress is yet to come. So now we are barely 2 weeks in between, 2 weeks or little more than 2 weeks. So what can they do in this time? Yeah. So that is one thing that the time is very short, and people don't have parties don't have enough time to campaign. Also, that is one thing. Yeah. At the same time, there is no excuse either, because even earlier the expected time was either in November or in December. So that is not certainly an excuse. Mm. View of the political scenario, it's it's hard. I'm not a prophet because there are so many prophets emerging, saying that, oh, this party will come to power, this party will be dethroned, and others are enthroned. So many prophets are emerging. Some are claimed to be religious prophets, some are re- claimed to be social political prophets. Those are very interesting discussion going on. Which party is saying what? Who is saying what? So, depending on the affiliation of the party or the relationship with the party, you are promoting which prophet is saying what. Yeah, anyway, those I, prophets are always coming every time of election. Yeah. So, yes, do you have any kind of question, I will. particular interest of area? Please go ahead. Yeah. Because of, since you mentioned about that refugee situation from Myanmar, Bangladesh, and Manipur right now. So Myanmar is already 2 years now, and then Bangladesh came last November 2nd. That was the first refugee landed in the extreme southern part of Mizoram. And then now Manipur come in a very, very big way. Yeah. In all this scenario, that was when the MNF party is in ruling. And having a chief minister like Mr. Zoram Thanga is very instrumental, particularly in accommodating them, receiving them, and in whatever way we can. Yeah, at least from that permission to stay there in a area because of that ethnic affinity. Of course, there is a letter from home ministry saying that please send them back, but he boldly say that I am not sending them back because they are our people, our family. So he took a bold step. So Ji. yeah, after that they started a kind of census of the refugees from Myanmar. So when they started in 2022 last year in February, and it was ended in March itself. So in no time they finished that statistics, and then they are also providing temporary ID, uh, so that they can travel only within Mizoram, because you know that there are so many areas we have to consider having a big flux of people coming into our state also. But Mizoram is very special in that way because of that networking we have, uh, and then networking of all different, mainly three areas. One is that YMA, Young Mizo Association, that has a branch in all villages. And then the next one is that women, MHIP, you may call it. That is a women, they have a branch in all the villages. And then elderly people, senior citizen again. So the three organizations are having a network in all the villages. So therefore the network is very, very well established. And because of that, there are a lot of positive things we can say about it. And above that, the political situation has become very, very important area,
because our economy is very bad, very, very bad in Mizoram right now. I cannot give you a statistical or percentage wise because I have no time even to study. But at the same time, we all know that economy is very bad. So in addition to having so many huge flux of people coming in, and their livelihood, their survival, their humanitarian need, and everything, it has to be considered. And if we, yeah, of course, we have a mixed feeling because we don't want them to stay here for permanently, and they don't like it either. So that their stay in Mizoram is temporary stay, and at the same time, their need is basic humanitarian need is there. So the central government is not even supporting any of this kind. Maybe a small amount. I don't even know how many. Yeah, it is small. I know, and there are some reports saying that we are not having even rice to eat, and when emergency supply has been made, that will last for only like 3-4 days. So like that, it's like baking for a day or a week. That is the situation right now. uh yeah. That very difficult right now, especially the central government is introducing so many bills, and so many amendments has been made that are directly affecting to us. For example, starting with the farm bill, how the farm bill can be benefited, because in one way the movement towards the farm bill will be very, very helpful, because the farmers are not even provided like MSP, minimum support price. See, in Mizoram, farmers are not supported. They don't get any support that they are due to get. So the farm bill was the starting point. Then after that, NEP education policy has come, and people have a mixed feeling about. Anyway, since I am in touch with South India, Bangalore in particular, most of the issues they raise, we can also join with them. Like 80% of the issues they raise can be a concern for us. Certainly, there is no time for us to do it. Dr. Yes, Lalte, if you can conclude, I will come on the second round and I take few more guests and then I again come back to you. If you can conclude in the certainly. first round. Yeah. So then UCC comes, then FCA again. All these three bills actually are very, very burning issue at this moment. Especially the FCA, whether it has connection with refugee situation, Myanmar situation, Manipur situation, and then we are also expecting another problem that may come from another states, Indian states as well in the neighborhood. So we are in a very vulnerable situation. Mm, yeah, Yes. maybe I, with that I'll yeah. close for now. Yeah. Yeah, we have few more questions. I will come back to you again. धनंजय जी, मैं अमित कुमार साहब, अगर आप से भाई इजाजत लेके, क्योंकि धनंजय जी का शो खुद का है 2:30 से, तो मैं उनसे पहले ले रहा हूँ. थैंक यू सो मच अमित. धनंजय जी, अब सीधे आपके पास आ जा रहे हैं. एक दो चीजें ये बताइए कि एक, जैसे हमारे दर्शक कह रहे हैं आनंद जी, मिजोरम में ट्रायंगुलर फाइट MNF, कांग्रेस और ZMP के बीच होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी की 3 दिन विजिट मिजोरम में होने वाली है. आप देखना, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी. ये भी एक बात है कि अगर राहुल गांधी 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये भी एक जैसे बेटिंग वाला हो गया ना, कि इट इज समथिंग जो मोदी जी हर चुनाव में जाते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरा, मुझे एक चीज, आप दो चीजों का एक साथ प्रश्न बता दीजिएगा. ये मिजो नेशनल फ्रंट की कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी तो है ना, वो वहां पे थोड़ा, भाई आप 5 साल सरकार चला लेते हैं तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तो लोग कुछ चेंज भी चाहते हैं. इन दोनों चीजों का प्रश्न आप विस्तार से दे दीजिएगा. धनंजय जी. देखिए, मणिपुर की घटना घटने से पहले जो नॉर्थ ईस्ट के हालात थे वो अलग थे.
नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अलग थी। मणिपुर ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया। हालांकि देश पूरा परेशान है, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इस बात से परेशान हुआ है कि मणिपुर में जो हुआ है कल कहीं भी हो सकता है। और मणिपुर से जुड़ा हुआ है मिजोरम, और मिजोरम का संबंध जो है इस तरह पे भी है कि कुकी जनजाति जो है उनके साथ उनका संबंध है। म्यांमार से जो आ रहे हैं उसको लेकर के भी संबंध है, जो खास करके उनके समुदाय के हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और उनका संबंध जो है कोई विदेशी जैसा नहीं, जैसा कि यहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है कि म्यांमार से जो आने वाले लोग हैं सारे रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है जो हम पर लाई जा रही बात। अब जो महत्वपूर्ण है कि मोदी जी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, मोदी जी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही की जा सकती है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मणिपुर पर बोलना पड़ेगा। और मणिपुर पे अगर बोलेंगे और एक तरफा बोलेंगे, जैसे संसद में खड़ा होकर के बोले थे, संसद के बाहर बोले थे, तो फिर उनकी आलोचना ज्यादा होगी और उससे उनको उधर नॉर्थ ईस्ट में और नुकसान होगा। अब एक बात आपने कही कि राहुल गांधी के जाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, MNF लोकल पार्टी है, जोरामथंगा अच्छे मुख्यमंत्री हैं, 3 बार पहले रह चुके हैं, ये बात सब सही, और उनकी लोकप्रियता भी है। और जो मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के उन्होंने रिएक्ट किया। उसके अलावा जो एनआरसी को लेकर के जो हुआ था, सीए को लेकर के, उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया था और कहा था कि हम एनडीए में है, लेकिन एनडीए की हर बात का समर्थन नहीं करेंगे, और सीए एनआरसी का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है, प्लस स्थानीय है, वो प्लस पॉइंट है। लेकिन लोगों ने ये महसूस किया है कि दिल्ली में जो सरकार है इस समय, बीजेपी की सरकार, उस सरकार को बदलना जरूरी है, क्योंकि मणिपुर को लेकर के ये सरकार बेहद असंवेदनशील सरकार के तौर पर उसने काम किया। मणिपुर की जनता केवल नाराज नहीं है, बल्कि नाराज जो है मिजोरम की जनता, मेघालय की जनता। और मिजोरम में जानते हैं कि उनका कोई बीजेपी वालों का कोई वर्चस्व है नहीं, वो जाके करेंगे क्या, मोदी जी क्या करेंगे जाकर के वहाँ एक उनके पास सीट है, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। तो मुख्य मुकाबला जो है वो बिल्कुल है कांग्रेस और जोरामथंगा की पार्टी है, और दूसरी जो तीसरी पार्टी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुमत, जो आपके दर्शक एक बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रो एक माहौल है। और राहुल गांधी चूंकि मणिपुर भी गए, राहुल गांधी को वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, और जो खास करके जो हिंदुस्तान का जो जनजातीय बेल्ट है, जो आदिवासी बेल्ट है, वो उनको पसंद करने लगा है। उसकी वजह नेहरू भी है, उसकी वजह इंदिरा भी है, और उसकी वजह राहुल की खुद की छवि, और उसकी वजह ये भी आती है कि बीजेपी के खिलाफ लोग हुए हैं, और बीजेपी ने जिस तरह का बर्ताव किया है पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में, उससे निराशा है सबके मन में। क्योंकि ये किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो भेदभाव करेगी, और भेदभाव मतलब चरम स्तर पर भेदभाव किया आपने जो है कंप्लीटली बदमाशी की। और जिस तरह से मणिपुर में स्त्रियों के साथ जो बर्ताव किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण। और मुझे लगता है कि हालांकि ये भी एस्पेक्ट है कि महिला डोमिनेटेड इलाका है, मिजोरम में महिलाओं की संख्या ज्यादा है बनस्पत पुरुषों की, वोट देने वालों की भी। लेकिन जो मणिपुर में जो स्वरूप दिखा है महिलाओं का, कि महिलाओं ने ही, मैतेई महिलाओं ने ही पुरुषवादी सोच अपनाया, और लड़कियों को, जो कुकी लड़कियां थी उसको मैतेई पुरुषों के सामने किया कि इसका जो चाहो करना है करो, और उकसाया एक तरह से रेप करने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये सोच करके भी भय लगता है कि हम आमतौर पर महिलाओं को लेकर के सोचते हैं कि महिलाएं होंगी तो महिलाओं के ऊपर जो है कम अत्याचार होंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम होगी, महिलाओं को लेकर के संवेदनशीलता बढ़ेगी। लेकिन मणिपुर में जो चेहरा दिखा है महिलाओं का, वो दुख पहुंचाता है। मुझे लगता है मिजोरम में इस तरह की स्थिति नहीं होगी, हालांकि ज्यादा बेहतर रिनी रालते बताएंगी। लेकिन एक जो धारणा है हम लोगों के मन में कि स्त्री के भीतर ममता होती है, संवेदना होती है, वो समाज को बदलने की क्षमता रखती है, वो मणिपुर से टूटा है। लेकिन मिजोरम की बात कहूंगा तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहां पे प्रभावी है, और इस बार शायद वहां कांग्रेस पार्टी बेहतर करे। जी जी अमित कुमार सर, धनंजय सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जब भी निकलना चाहें, अगर जब तक रुकेंगे ठीक है, जब भी निकलना चाहें। अमित कुमार सर, 5 मिनट हूँ सुनता हूँ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित कुमार सर, एक तो धनंजय सर ने बात बहुमत की, तो जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई उन्होंने स्पष्ट किया एक चीज को लेकर के कि जो मुकाबला होगा इस बार चुनाव का वो ट्रायंगल वाला होगा, त्रिकोणीय मुकाबले की बात सर्वे ने साफ साफ कही। हालांकि ठीक है कि सर्वे ने ये दिखाया कि एमएनएफ सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है और उसमें जो है वो करीब 13 से 17 सीटें भी दिखाई गई। तो एक तो आपकी टिप्पणी इस पर कि क्या चुनाव ट्रायंगल होने जा रहा है या फिर कौन सी पार्टी ज्यादा बढ़त की ओर दिख रही है, या सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कितना ऑथेंटिकेट माना जाए उसको। दूसरा एक बात मैं सवाल छोटा सा और जोड़ दूं, जो चूंकि महिलाओं को लेकर के बात अभी धनंजय सर ने कही कि बहुत बड़ी संख्या है वहां पर, ठीक है, पर सर महिलाओं का जो इतिहास है चुनाव के हिसाब से वो यहाँ मिजोरम में भी ठीक नहीं है। बहुत लंबे समय से वहां पर कोई भी महिला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। करीब मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है 87 वगैरह में लास्ट टाइम महिला विधायक बनी थी। फिर उसके बाद सीधे 2014 में जो उपचुनाव हुआ उसमें एक महिला विधायक जीती जिन्हें मंत्री बनाया गया, और वही फिर 2018 के चुनाव में हार भी गई थी उस सीट से। तो सर जहां महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है वहां पर महिला विधायक का ना होना, वो भी उस समय जब हम महिला आरक्षण को लेकर के इतनी जो है वो पीठ थपथपा रही है सरकार और ये सारी चीजें हो रही है, डिमांड हो रही है, तो क्या स्थिति रहने वाली है महिलाओं की? ये सर दोनों सवालों पर आपके जवाब। अमित सर। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, राम जी आपका भी और आनंद साहब आपका भी। देखिए, मिजोरम को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मुख्य धारा के जो टर्म्स हैं ना, बीजेपी कांग्रेस, इनको साइड करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं इस रीजन में 5 साल से रह रहा हूँ, 3 साल से इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हमको एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य के कंटेक्स्ट में ये खत्म करना पड़ेगा कि लोग सवेरे उठ के सोचते हैं कि बीजेपी को वोट दे कि कांग्रेस को वोट। पहली बात, यहाँ पर लोग उसको बीजेपी और कांग्रेस की तरह से नहीं देखते, यहाँ पे उसको मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उनके रूप में देखा जाता है। और कांग्रेस और बीजेपी करने का कोई खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि जिसका सूरज ऊपर उठता है लोग उसके साथ जाते हैं। क्योंकि देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो आपके पास एक तमिलनाडु, एक कर्नाटका के पास हो। जिस तरह की एक अर्थव्यवस्था होती है आपके मतलब राज्यों की मेनलैंड में, वो हमारे पास इस यहाँ पर हमें मुहैया कभी नहीं करेगी। तो एक मेघालय को ले लीजिए या नागालैंड को ले लीजिए या मिजोरम को ले लीजिए, इनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो सेंटर के साथ काम ना करे। तो सेंटर में अगर कांग्रेस की सरकार रहेगी तो लोग कोशिश करेंगे कांग्रेस के साथ काम करें, अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ काम करें। तो ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है कि ये कांग्रेस, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, ये सब आप मुख्य धारा में आपका हो भी सकता है। यहाँ पे कोई भी मिजो इसीलिए कांग्रेस को वोट नहीं देगा क्योंकि राहुल गांधी आए। क्योंकि अगर आपको पूर्वोत्तर में अन्याय की बात करिए, हिंसा की बात करिए, लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिलने की बात करिए, तो उससे आप कांग्रेस को अलग नहीं कर सकते। आप सब में से शायद कुछ लोगों को मणिपुर की वो कहानी याद होगी जब 15 साल इरम शर्मिला ने भूख हड़ताल की थी। तो अब लोग ऐसे बात करते हैं कि मतलब जैसे पता नहीं कौन सी सदी में हुआ था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो जहां तक बात मिजोरम की है, त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, इसीलिए क्योंकि इस बार ZPM जो मिजोरम पीपल्स मूवमेंट है, हालांकि पिछली बार कुछ लोग उसके नाम पर लड़ नहीं पाए थे क्योंकि तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, तो वो इंडिपेंडेंट लड़े थे। 2019 में पार्टी को ZPM का रूप दिया गया और उस पार्टी ने मिजोरम में एक और बात है कि मिजोरम में बाकी जगह की तरह म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं होते। आइजोल में एक म्युनिसिपल काउंसिल है, उसके अलावा एक छोटा सा शहर है लुंगले में इस बार पहली बार म्युनिसिपल काउंसिल में इलेक्शंस हुए अप्रैल के महीने में, और उस दौरान आपको ZPM ने MNF को एक कड़ी शिकस्त दी। तो ये देख के लोगों में आया कि हाँ शायद ZPM की तरफ लोगों का रुझान रहे। तो ये बात जरूर है। मैं लेकिन ये नहीं मानता कि अगर मिजोरम कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका श्रेय कहीं भी सेंट्रल लीडरशिप को नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेंटालिटी जो है कि मोदी जी वर्सेस गांधी, राहुल गांधी, ये आपका मुख्य धारा में चलता है। यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांधी आ रहा है कि मोदी आ रहा है कि कौन आ रहा है, क्योंकि मुख्य धारा की पार्टियों की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पर अगर किसी पार्टी की जीत होती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, तो उसमें लोकल यूनिट का बहुत बड़ा योगदान होता है।
उस तरह से मिजोरम कांग्रेस ने थोड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस को आने में बहुत मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि पूर्वोत्तर में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसका कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का पूरा पूरा हाथ है। तो इसीलिए कांग्रेस के लिए हमेशा मुश्किल होती है। और जेडपीएम का हमेशा से कहना है कि हम एमएनएफ और कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहे, हम अब लोगों के अलावा एक थर्ड फ्रंट समझ लीजिए, मिजोरम का एक थर्ड फ्रंट समझ लीजिए। रही बात महिलाओं की, तो ये बात हमको फिर से मुख्य धारा की तरह देखना चाहिए कि अगर आप इस स्टेट में पूछते हैं तो अब मैं ये भी पूछता हूँ कि अगर यूपी में 15 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, 7.5 करोड़ जनसंख्या अगर औरतों की है, तो उनके असेंबली में आपको कितनी औरतें दिखती? क्या आपके असेंबली में 200 सीट में 250 सीट में 150 औरतें तो नहीं है? तो ये फिर से वही बात हो जाती है कि ये समझना चाहिए कि मुख्य धारा की जो लॉजिक होती है यहाँ नहीं चलेगी। नागालैंड में इस बार इतिहास बना, 3 महिलाएं विधायक बनी। मिजोरम में इस बार पिछले के मुकाबले 7 महिलाओं ने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। मणिपुर में भी आपको पिछली बार महिलाओं की संख्या काफी थी 2022 के इलेक्शन में। यहाँ पर वही बात फिर से हो जाती है कि इलेक्शन 10 लाख लोगों की जनसंख्या में अगर 40 सीट होंगे तो उसमें कोशिश यही रहती है कि कद्दावर नेताओं को या बाहुबली जो नेता होते हैं उनको सीट दिया जाए। तो उसके अंदर ये लाजमी सी बात है कि वंचित समुदाय जैसे महिलाओं का है। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का रोल बहुत अहम है, राजनीति में महिलाओं का रोल बहुत अहम है, चाहे मणिपुर देखिए, चाहे नागालैंड देखिए, चाहे मिजोरम देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर स्तर पे जाए, समझ रहे हैं आप? तो वो भी होता है। और कहीं ना कहीं ये एक जैसे वो मतलब मेंटालिटी भी होती है कि नहीं, औरतों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली भी बात आती है कहीं ना कहीं। लेकिन उम्मीद है कि इस बार वो जो मतलब लड़ी जो चल रही है कि औरतें नहीं आती मिजोरम इलेक्शन में जो विधायक बनकर, वो शायद लड़ी टूटने की संभावना काफी है। तो ये जरूर जी रहेगा। जी अमित सर, एक चीज और है जो शरणार्थियों को लेकर के जिस तरीके से बात हो रही है, अब जैसे मणिपुर जब मामले में आ गया है, मणिपुर में इतना बड़ा जो मामला हुआ, तो निश्चित तौर पर मिजोरम के इलेक्शंस में मणिपुर की भी गूंज कहीं ना कहीं देखी जाएगी। नहीं, देखिए इसमें ये फिर से मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अमित सर अपना सवाल मैं पूरा कर दूं, फिर आप आंसर करें तो जी अच्छा रहेगा। जी, जी उसमें सर बात ही हो रही थी जब जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि शरणार्थियों का आप बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करें, और जो सरकार है एमएनएफ ने उससे इनकार कर दिया था। तो ये जो सीन है सर, इसको लेकर के बात हो रही है अब कि अब ये रणनीति की तरीके से देखा जाए या विवाद की तरीके से देखा जाए, ये क्या है इस पूरे ये पूरा मामला? देखिए, इसको मैं ना रणनीति समझूंगा ना विवाद समझूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात है कि शरणार्थी आए हैं, इसमें एक चीज जो समझने की बात है, जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि इस पर पॉलिटिक्स तभी संभव है, शरणार्थियों को लेके, रेफ्यूजीज को लेके पॉलिटिक्स तभी संभव है अगर लोकल पार्टीज में मतभेद हो। तो अगर ऐसा होता कि एमएनएफ शरणार्थियों का स्वागत कर रही और कांग्रेस, बीजेपी या जेडपीएम उसके खिलाफ बोलती, तो कह सकते थे कि हाँ चलिए, एक तरफ जोरमथंगा के लिए सपोर्ट बन रहा है, दूसरी तरफ जो है वो जोरमथंगा के खिलाफ सपोर्ट जा रहा है। मिजोरम में राजनीति इस तरह से नहीं होती। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 2021 में शायद आपको याद होगा कि असम मिजोरम बॉर्डर पर गोली चली थी और 6 असम पुलिस के लोग मारे गए थे। उस वक्त जब कांग्रेस की ऑपोजिशन लीडर, असम कांग्रेस की ऑपोजिशन लीडर सुष्मिता देव उस टाइम कांग्रेस में थी, अब टीएमसी में हुआ करती, वो जब बॉर्डर पे आना चाहती थी तो उनको हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आने नहीं दिया था बॉर्डर, जहाँ पर गोलियां चली। मिजोरम में लेकिन ये वायलेंस के बाद ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेडपीएम किसी ने भी जोरमथंगा के खिलाफ एक पर्चा भी नहीं निकाला, क्योंकि बात मिजोरम की थी। ठीक है, ठीक उसी तरह से शरणार्थियों की बात है। ऐसा नहीं है कि एमएनएफ शरणार्थियों का स्वागत कर रही है, जेडपीएम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जेडपीएम भी आगे आकर कह रहा है कि हाँ ये हमारे लोग हैं, हमारे ही समुदाय के लोग हैं, इनको समर्थन करने का हमको पूरा हक है। तो ये बात कहना कि शरणार्थियों का आने से इलेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एग्जैजरेट कर देना, कि ये हम देख रहे हैं 2, समझ रहे हैं 20 और सोच रहे हैं 200, उस तरह से बात आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये इशू उतना असर करेगा इलेक्शन पर, क्योंकि 2 बातें हैं। इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अप्रोच वही है कि इनको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यहाँ पे रहने देंगे।
और दूसरी बात रही कि मिजोरम में खुद के बहुत सारे इश्यूज हैं जो ज्यादा मतलब जिनको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 लोग या म्यांमार से 40,000 लोग और बांग्लादेश से करीब 1,000 लोग जो आए हैं ये चुनाव पर असर करेंगे, क्योंकि इससे जोरमथंगा को अगर फायदा होगा तो इसको लेकर जेडपीएम भी कह सकते हैं कि हाँ हम भी इनके साथ हैं। और जेडपीएम ने कहा है, मिजोरम में जब बात मिजोरम की आती है तो बाहरी लोगों के लिए कम से कम एक यूनिटी हम लोग को दिख जाती है जो आपको बाकी स्टेट में नहीं दिखती। और जो सोसाइटी हमारी सोसाइटी जिसमें जातिवाद का इतना भयंकर असर है, हम लोग को हमेशा ये समझने में मुश्किल होगा कि लोग एकजुट कैसे सही तरीके से हो। मिजोरम जब कुछ कुछ मुद्दों पर मिजोरम एकजुट एक चेहरा दिखाता है जो बाकी भारत को ना समझ में आता है और ना हमने वो कभी देखा है। तो ये बात हमको बहुत जरूरी है समझना है मिजोरम के संदर्भ में कि कुछ कुछ मुद्दों पर मिजोरम में पॉलिटिकल लेवल पर अगर आपने खिलाफ बोला तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अगर आज के डेट में जेडपीएम या फिर कोई बीजेपी या कांग्रेस आके बोल दे कि नहीं कुछ लोगों को वापस भेजो तो वो पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, इसीलिए कोई मुंह नहीं खोलना चाहिए। जी जी Dr. Alte, if you are there, I will like to talk to you, Dr. Alte. Yeah. Yes. Dr. Alte, yeah, very few small things which my audience might like to know. In Mizoram, you primarily you have people who have faith in Christianity, but do you have temples? Do you have masjid? Do you have I mean all these churches, temples, masjid in Mizoram? Yes, in the very heart of Aizawl city, we have both temple and masjid. Yes. Hey, Not the only way one. the way we are seeing that in Manipur, there are communities which have their own. I mean, the relationship is strained at the moment. They have lived peacefully for such a long time, but just because of election and just because of votes, they are now divided. So we don't see any such divide in Mizoram, or yes, there is a divide, and but you are managing on the religious lines. On the religious lines. Oh no, there is no. I think it is minimal. I would say it is minimal because one reason is that Mizo people are more majority, highly majority. Yeah, that minority is very small. Yeah, particularly Chakma and Bru, and then the other religious affiliation, Muslim and Hindu, are still smaller in number than the Bru and the Chakma. So is it because majority is overpowering, therefore others are not raising their voice, or a time has not come? That can be can be an area of our discussion, yes, as well. Dr. Alte, tell me one more thing. What is the basic employment which is there in Manipur? What is your livelihood? Is it tourism, or it is agriculture, or it is anything else? I mean, what is the basic employment? Mizoram or Manipur? Mizoram. I'm so sorry. Mizoram. Yeah. I'm so sorry. I would say that agriculture is the main livelihood and economy. Yeah. Oh. Otherwise, the second one is that government employment. So So therefore, the economy has become very bad, especially even before COVID, and the COVID is also adding to the problem of economy because there is no marketing system, there is no productivity of crops is reducing like anything. So I would say that more than 60% of the people are still relying on agriculture as the only subsistent economy. Yeah. Yeah. Dr. Alte, tell me one more thing. One of my audience says that Rahul Gandhi, after Bharat Jodo Yatra, people are taking him seriously. He's now talking to cross section of people. He's talking to elderly people. He's talking to pensioners. He's talking to youngsters.
He's talking to all kind of people. So, do people of Mizoram are also waiting when Rahul Gandhi will come? They want to talk to Rahul Gandhi with his Bharat Jodo Yatra because he's one leader who is talking to people. Yes. What solution? Yes. I would say, because let me give you an example of Manipur. Can I? Yeah, because I was in the heat of Manipur. I was there for 2 weeks in Manipur. That was the time. That was June end and early July. When they are expecting so much that Home Minister will come for the second visit, because he promised to come back in June for 3 days, July 3 days, like that. They are expecting him to come. And at the same time, they are expecting that Prime Minister will bring peace also. So that was a time when Rahul Gandhi was visiting Manipur, particularly in the in both areas, in the plain and the hill areas. I was there in that meeting because he would like to visit 3 areas. One is that Wall of Remembrance, and the second one is that the relief camps and having a lunch with the relief camps inmates. The third one is that he would like to meet the families of those people killed. So because of that blockade, he could not make it. Somehow he came for only like 7 minutes or 8 minutes visit to the bereaved family. I was there because I was allowed to be part of that group. And then before he came, because he was expecting to come from 11 o'clock in the morning, and then he reached only at 3:30 or something like that. That time they also requested me to talk to them and then speak to them, console them in whatever way I can, especially in the aspect of religious aspect of it and social culture. So when he came, it was unthinkable. The cry, the volume of cry. I'm embracing him like, a family member who was, I was also literally crying by seeing those people because their expectation is so high. They are so desperate. So likewise, I think that Rahul's presence is having a big impact. I would say that much I can say. It has a big impact. Dr. Ralte, tell me one more thing. Manipur state, they were living peacefully, everything was okay. Now there is a rivalry between the two groups, and it looks like that it is not a very easy thing to come to a peace and then again live peacefully. Do you think how much time it will take that when Manipur becomes normal and then people start living peacefully the way they used to live about a year back, or it is a difficult thing? All of us observe Gujarat problem. In 3 days time, the atmosphere was reduced. In 3 days time, how long it takes now? Manipur 5 months. So the government can stop the violence anytime they want. That's all I can say. Because now, how many guns are looted from the police station? How many individual people are holding guns? Most of the guns seem to be very powerful guns, because when I listen to many, every day and every night, we are listening to the plight of Manipur. And most of the expressions I have is that most of the guns they have by the Kuki people are only like air gun. Yeah. So their Métis are having almost like 10 times stronger. I don't know exactly because I'm not expert in that area at all. I'm illiterate actually in that aspect. So if the government change the policy, it is all connected with FCA, no? Forest Conservative Amendment Act. So we are in deep fear right now. Notice people are so vulnerable right now. Because if it had happened in central India,
there are so many people who can against, who can protest, who can resist, but Northeast is not like that because of that international border, and situation is very complicated. So therefore, the central government positive roles in order to reduce this conflict, if the central government is committed to, that is the only hope we have. So we say that if Prime Minister can take a U-turn in his ideology of development, Act East now, Look East policy is continue with Act East policy. How Act East policy is going to have a negative reinforcement to the people. It's very, very fearful. We are in deep fear right now. जी अमित जी, अगर डॉक्टर एलटी प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कम बैक अगेन टू यू. अमित जी अगर आप हैं, अमित जी एक चीजें मैं जरा आपसे पॉलिटिकल चीज समझ लूं. जैसे जब नॉर्थ ईस्ट में ये कहा गया था, बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया गया कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो गया है, और क्योंकि वहां कांग्रेस, आप किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है और ना कांग्रेस किसी भी फॉर्मेशन में, किसी भी गठबंधन में नहीं है. लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जो मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है, और उस पे जिस तरह से मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से उस पे रिएक्ट कर रही हैं, क्या इसका असर नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम के आने वाला कोई भी इलेक्शन हो, अभी तो मिजोरम में है, उसके बाद बाकी इलेक्शंस होंगे, उस पे क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी के लिए? मतलब मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना मणिपुर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि मणिपुर में जो सरकार अभी है उसको उसी राज्य के लोगों ने पिछले साल बहुमत से जिताया था. बीजेपी बहुमत से आई थी, पहली पार्टी थी जो मणिपुर में अकेले बहुमत लेकर आई मणिपुर. ठीक है, कांग्रेस की कोई बिसात नहीं है, मणिपुर में कोई बिसात नहीं थी, 5 पे बच गए, यही हालत है उनकी. ठीक है, मेघालय में भी उन लोगों ने, देखिए एक चीज हमको समझना पड़े कि बीजेपी चाहे वो जीते चाहे वो हारे, अपने आप को हमेशा एक दावी के रूप में दिखाती है, प्रत्याशी के रूप में. इस साल 3 राज्यों में चुनाव हुए पूर्वोत्तर में, नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में. तीनों दो राज्यों में उनकी गठबंधन से सरकार थी और एक राज्य में उनकी सरकार थी. जिस त्रिपुरा में उनकी सरकार थी वो वापस आए सरकार में, क्योंकि एक भी आपको त्रिपुरा का आदमी ये नहीं बोलेगा कि 2018 और 2023 त्रिपुरा में अंतर नहीं है, हालात सुधरे. त्रिपुरा 2023 का त्रिपुरा 2018 के त्रिपुरा से अच्छी हालत में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है. और इसके लिए वापस मैं कांग्रेस पे आता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो उन्होंने हमेशा लेफ्ट की सरकार को सही अमाउंट पैसे नहीं दिए काम करने के लिए, क्योंकि वो वापस सरकार में आना चाहते थे. अब ना वो आए, ना कांग्रेस आई, ना लेफ्ट आई, बदले में बीजेपी लेके चली गई और इस बार बीजेपी वापस आई. मेघालय में उन्होंने काफी जोर शोर से प्रचार किया. अमित शाह ने तो आकर ये भी कह दिया कि कॉनराड संगमा की सरकार दुनिया की, भारत की सबसे करप्ट सरकारों में से एक है. फिर भी उनके 2 प्रत्याशी, 2 एमएलए थे 2018 में, 2023 में भी 2 ही रहे. तो मेघालय में उनका कुछ फायदा नहीं हुआ. और वो जो 2 नेता हैं बीजेपी के, एल हेक और सांबो सुलाय, इन दोनों की पकड़ ऐसी है कि वो कल को अगर किसी और पार्टी में भी चले जाएंगे तो वो जीत जाएंगे. तो उसको मैं बीजेपी की जीत नहीं मानता. नागालैंड में उन्होंने गठबंधन के थ्रू 12 सीटों पर चुनाव लड़े, गठबंधन के थ्रू चुनाव लड़े और 12 सीटों पर उन्होंने वो विजयी हुए. वो 12 सीट उनका पिछले बार भी 12 सीट ही था. नागालैंड में भी उनका ग्रोथ नहीं हुआ, मेघालय में उनका ग्रोथ हुआ नहीं. त्रिपुरा में उनकी सरकार थी. जहां तक बात है कांग्रेस मुक्त, तो मैं बार बार ये कहूंगा कि जो यही मैं बोल रहा हूँ कि मेनलैंड की जो पॉलिटिक्स है कि बहुत जल्दी भूल जाती है 5 साल पहले किसकी सरकार थी और वो क्या कर रही थी. तो मणिपुर में जो हुआ है उससे कांग्रेस को तो कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि मणिपुर का अगर बेड़ा गर्क करने में बीजेपी ने आज आग जलाई है, तो उस जमीन को गर्म करने की, उस जमीन को बर्बाद करने की का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है. आसपा के दौरान जितनी मौतें हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, वो सब की सब कांग्रेस की सरकार थी. जब विनोद शर्मिला 15 साल भूख हड़ताल पर रही, जब मनोरमा का इतना मतलब बुरी तरह से बलात्कार हुआ था 2004 में, तब कांग्रेस की सरकार थी. महीनों महीने जब लॉकडाउन चलती थी मिजोरम में, मणिपुर में,
जब गैस का सिलेंडर 1500 रुपए का हुआ करता था तो कांग्रेस की सरकार होती थी। मणिपुर के लोग ये बात भूले नहीं। जरूर उनको बीजेपी से काफी दुख हुआ है इस बार, बीजेपी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से मणिपुर को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ गुस्सा कांग्रेस के लिए प्यार में नहीं बनता। ये हमको बहुत जरूरी बात है, ये समझना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ कि जब अगले साल मणिपुर में लोकसभा की जो 2 सीटें हैं उनमें से एक पर बीजेपी फिर भी गारंटी आएगी। क्योंकि वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूर्वोत्तर के राज्यों में लोगों में गुस्सा का मतलब ये नहीं कि वो उनको ये समझ नहीं आता कि पार्टी कौन सी दमदार है। वो अगर किसी ऐसी पार्टी के एमएलए को चुन ले या एमपी को चुन ले जो उनके लिए कुछ कर ही ना पाए तो उनको क्या फायदा होगा उससे। देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चरमराई हुई। ठीक है, हम असम को छोड़ दें तो भारत में कंपनियां हैं जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों से ज्यादा कमाती हैं, कंपनियां हैं। ठीक है, मिजोरम का 85% खर्चा सरकार उठाती है, केंद्र सरकार। मिजोरम की हालत इतनी मतलब बुरी हालत है। देखिए सेंसस 2011 के हिसाब से मिजोरम की जनसंख्या 11 लाख से कम है, इट इज लेस देन 11 लाख रुपीज एज पर सेंसस 2011। अब अगर आप उसको रेफ्यूजी नंबर से हिसाब से देखते हैं, 40,000 आपको करीब 40,000 आपको बर्मा से आए, म्यांमार से आए, 10,000 के आसपास मणिपुर से आए, हालांकि कुछ चले गए वापस, लेकिन अभी के लिए मैं मान लीजिए 10,000 मानता और 1,000 आप बांग्लादेश से मानते हैं। अगर किसी राज्य का जनसंख्या 10 लाख हो और 50,000 लोग आ जाए, मतलब 2 साल के अंदर उस राज्य की जनसंख्या 5% बढ़ गई है। यही नंबर अगर यूपी में आप डालेंगे तो समझ लीजिए 1 करोड़ अगर शरणार्थी आ जाए यूपी में। और ये मिजोरम की सरकार को ये जो 5% उनकी जनसंख्या अनऑफिशियली बढ़ी है, उसके लिए सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, बल्कि बहुत सारे फंड से करीब 3,500 करोड़ का आउटले था जो मिजोरम गवर्नमेंट को नहीं मिला है बिकॉज ऑफ कोविड डिलेज। तो ये सरकार की हालत बहुत चरमराई हुई है और इसका कहीं ना कहीं मैं इसको बीजेपी कांग्रेस जितने मैंने नहीं करूंगा, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसे है। हम नहीं चाहते कि पूर्वोत्तर के राज्य आर्थिक तौर पर मजबूत हो, सेल्फ सफिशिएंट। हमने नॉर्थ ईस्ट को जानकर डिपेंडेंट बनाया है ताकि इतिहास जो दिखाता है हमको गलती से भी ये फिर कभी इंडिपेंडेंस की बात ना करे। तो इनको सरकार की इंडस्ट्रीज मत बनने दो यहाँ पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज इतनी बुरी है कि आपको लॉन्गलेट डिस्ट्रिक्ट एक जगह है मणिपुर में, वहां पर 1,17,000 की जनसंख्या। आनंद जी, कुछ 2 साल पहले की हम लोगों ने 1500 वर्ड की स्टोरी करी थी। 7 डॉक्टर थे 1,20,000 लोगों की, 3 डॉक्टर ने एक साथ क्विट कर दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 डॉक्टर बचे, जिसमें से एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था। कुछ इलाके ऐसे जहां पे 50,000 लोगों के लिए अस्पताल नहीं है। मणिपुर के इकोनॉमी में आपको सुपारी, जो पान सुपारी जिसको बोलते हैं, तामुल बोलते हैं असमीज में, बीटल नट बोलते हैं अंग्रेजी में। नॉर्थ मिजोरम में बीटल नट एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय है और अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ की हड्डी है। बर्मा में coup होने के बाद इतनी ज्यादा स्मगलिंग हुई है सुपारी की, जिसको हम पान सुपारी समझते हैं। बीटल नट की स्मगलिंग इतनी बढ़ गई थी कि हाचेक करके एक जगह है नॉर्थ मिजोरम में, जहाँ पे फार्मर्स ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया था 2-2 हफ्ते के लिए, क्योंकि उनसे कोई बीटल नट खरीद ही नहीं रहा था। पिछले साल मिजोरम में कई बीटल नट फार्मर्स की क्रिसमस बहुत बुरी गुजरी क्योंकि उनका हार्वेस्ट नहीं बिका। आपको मैं बताता हूँ कि सिर्फ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण नहीं तो कम से कम 300-400 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ के फार्मर्स को, जो सुअर रखते हैं। और यहाँ पे पोर्क का तो मतलब यहाँ पे मेन मीट तो पोर्क है हमारे लिए यहाँ पर। तो पोर्क का जो बिजनेस है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ है और फार्मर्स को कंपनसेशन नहीं मिला है और केंद्र की सरकार की तरफ से भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। तो यहाँ पे वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरफ से इन राज्यों को जो है ना वो दबाया जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, सामाजिक तरीके से हो। बार बार ये बताया जा रहा है कि भूलो मत, हम तुम्हारे ऊपर हैं। और इसके अंतर्गत अगर आप जब चुनाव को देखते हैं तो समझ में आता है कि एक चीज मैं बोलूंगा, मणिपुर का असर भले मिजोरम इलेक्शन पर ना हो, रिजल्ट पर ना हो। जैसे मैंने समझाया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से मतभेद नहीं रख रही। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करी कि कुकी लोगों को वापस भेजना पड़ेगा या बर्मा लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। तो जोरमथंगा को टारगेट नहीं कर सकते उसके।
मतभेद पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आनंद जी कब होती है? जैसे सीए पे एक पार्टी बोली कि हम सीए का समर्थन करते तो दूसरी सोचेगी कि नहीं हम विरोध करके सरकार में आने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। अगर दोनों सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आप राजनीति नहीं कर सकते ना उसके ऊपर। उसी तरह से मणिपुर का अगर किसी पे असर हुआ है तो ये है कि जो बीजेपी का 1% चांस था कुछ करने का, उसका भी हवा टाइट हो गई। अभी बीजेपी में लीडर्स आए हैं, आपको ये असेंबली के जो स्पीकर है साइलो साहब, साइलो जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये साइलो साहब इसलिए पार्टी ज्वाइन की क्योंकि उनका जो टिकट है वो उसका पत्ता कट गया। तो ये तो हम हमेशा देखते हैं कि भैया जिस भी सिटिंग एमएलए का अगर आप पत्ता काटोगे तो वो गाये बगाए जो भी पार्टी उसको बुलाएगी उसके पास चले जाएगा। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं देखता कि इससे बीजेपी को कोई समर्थन मिलने वाला है। बल्कि एक चीज मैं आपको बताऊं, जो एक एमएलए था बीजेपी का बुद्धगन चकमा, वो भी रिटायर कर चुके हैं। उन्होंने तो जून में पिछले साल की शुरुआत में कह दिया था कि वो पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहे हैं। चकमा देखिए, मिजोरम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है, 12 ऑटोनोमस काउंसिल है, ये चकमा ऑटोनोमस काउंसिल है और लाई ऑटोनोमस काउंसिल है। अब इस साल आपको चकमा ऑटोनोमस काउंसिल में इलेक्शन भी हुए थे और चकमा ऑटोनोमस काउंसिल में, क्योंकि जो रिनी जी कह रही थी कि जो नॉन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो चकमा ज्यादातर बुद्धिस्ट और हिंदू है, ज्यादातर चकमा। तो इसलिए बीजेपी, और वहां पे आरएसएस का काफी पुराना इतिहास है, वहां पे भी बीजेपी को ऑटोनोमस काउंसिल में भी इस बार ऑटोनोमस काउंसिल में भी उनको वोट नहीं मिला। जिस इलाके में इतने साल से काम कर रहे हैं, अगर वहां के लोगों ने इस बार आपको नकार दिया है तो आप सोच ही सकते हैं कि स्टेट में क्या होगा। तो वापस वही कह रहा हूँ कि मणिपुर के में जो हो रहा है, जो हिंसा चल रही है, उससे मिजोरम की चुनाव के नतीजे पर असर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी को सबसे ज्यादा धक्का लगा है तो वो है बीजेपी। नहीं, मैं थोड़ा अमित साहब, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपने कहा था कि नहीं बीजेपी को, मेरा प्रश्न यही था कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नुकसान, आप कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं कि बीजेपी की आप गारंटी से कह सकते हैं मणिपुर में सीट आएगी, लेकिन ये बीजेपी का मॉडल है। बीजेपी की गुजरात में गोधरा दंगे से पहले ये हालत नहीं थी, लेकिन जब गोधरा उन्होंने दंगा कराया, वहां पे लोगों की मारपीट हुई, उसकी जांच ठीक से नहीं हुई, लोगों को, दोषियों को जेल नहीं भेजा गया, उनके अपने होम मिनिस्टर हरेन पांड्या की हत्या हुई, उसके बाद सोहराबुद्दीन इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जज लोया की डेथ हुई, जिसको कुछ लोग हत्या कहते हैं। तो उसके बाद डर के मारे लोगों ने, अब 26 में 26 सीट आती हैं, तो वो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। वहां पे एक सीट नॉट बिकॉज ऑफ लव, वो इसलिए आएगी क्योंकि आपने नफरत वाला एक काम कर दिया, आपने कुकी और मैथीज को आपस में इतना लड़ा दिया कि वो एक दूसरे को अब देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वो तो साफ साफ सभी लोग कह रहे हैं कि वो जो मैथीज और कुकीज एक दूसरे के यहाँ इवन डेड बॉडीज लेने नहीं जा पा रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इसको कुछ करो। मेरा जो अभी भी, हाँ, मैं 1 मिनट में पूरा कर लूं। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि एक जो नैरेटिव बीजेपी चलाती है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा, मिजोरम में 1 सीट और बीजेपी कहती है सरकार हमारी, सिक्किम में 0 सीट बीजेपी कहती है सरकार हमारी, मेघालय में 2 सीट बीजेपी कहती है सरकार हमारी। ये नैरेटिव नॉर्थ इंडिया में बीजेपी ये बताती है कि 8 जगह पे मेरी सरकार है। मैं थोड़ा देखिए, वो उनके पास एक अपना तंत्र है, वो अपने ढंग से चलते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मणिपुर के इंसिडेंट से नॉर्थ ईस्ट में भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन सेंट्रल इंडिया में बीजेपी के भले ही 1 वोट कम हो, लेकिन उनके वोट कम हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नाउ मणिपुर इंसिडेंट ने कॉन्शियसनेस ऑफ दिस कंट्री हैज बीन शैटर्ड। उसको लग रहा है कि ये कैसे कोई प्रधानमंत्री कर सकता है कि 6 महीना हो गया है, उसकी अपनी वो है और वो जान ही रहा है, ही इज नॉट गिविंग अ स्टेटमेंट, ही इज नॉट गोइंग टू दैट स्टेट। तो वो मैं कह रहा हूं कि वो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़े, वो मणिपुर की 1 नहीं 2 सीट जीत ले, लेकिन उसका सेंट्रल इंडिया का जहां का जो मैं समझता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट को उतना नहीं जानता हूं, फर्स्ट हैंड नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में इवन मणिपुर इंसिडेंट से बीजेपी का नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं चुनाव के परिणाम के संदर्भ में कह रहा था कि ये कहना कि देखिए नुकसान तब होता है आनंद जी जब आपको फायदा होने की गुंजाइश हो, और फायदा और नुकसान तभी होता है जब आप कुछ कर रहे हो। जब आपकी पार्टी में एक ही आदमी, अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, अगर आपका एक एमएलए है, 1 से अगर 2 हो जाएगा तो आप तो कह सकते हैं भैया हमने अपनी सीट डबल कर ली।
लेकिन 40 में तो आपका 5% है ना। उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि नुकसान और लाभ तो तब होगा जब आपका कोई फाउंडेशन हो। अभी तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और ये इन तीन राज्यों में बीजेपी उस तरह से नहीं आ सकती है जिस तरह से बीजेपी बाकी जगह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदुत्व वाले पॉलिटिक्स यहाँ चलेगी नहीं। मणिपुर में मैत्री इलाकों में चल भी सकता है, बट इंटरेस्टिंग बात है कि मणिपुर में भी जीतने के लिए उन्होंने आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता जो बीजेपी में 30-30 सालों से थे, उन सबको एक सिरे से निकाल दिया। आपको एक विपिन सिंह करके एक नेता हुआ करते थे अब मणिपुर बीजेपी में, वो बीजेपी के लिए 1990 में चुनाव लड़ा करते थे, जब मणिपुर में बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था। उन सब लोगों को एक सिरे से इन लोगों ने निकाल के बीरेन सिंह के लोगों को लाया, जो कांग्रेस अपने साथ पूरी टीम उठा के लाए थे, और सरकार बना ली। तो जहां जहां पेमा खांडू, अब आपको ही याद है डोरजी खांडू के जमाने में कांग्रेस के नेता थे, पेमा खांडू कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिया, खत्म। हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ शारदा स्कैम की बात चल रही थी, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी अपने साथ जो लोग थे, जब देखा कि कांग्रेस हारने वाली है तो उठ के पूरा का पूरा बीजेपी में आके सरकार बना दी। तो बीजेपी का मॉडल वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में यही रहा, जब वो कहते हैं कि हमारा जो बीजेपी ये नॉर्थ ईस्ट विद द बीजेपी, उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल लीडर्स हु हैव सीन द राइटिंग ऑन द वॉल आर विद द बीजेपी। उन्होंने देख लिया कि भैया बीजेपी को साथ दोगे तो ही हमारा कुछ होगा, तो ही हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहीं पर आपको मिजोरम बाकी राज्यों से अलग रहा है, क्योंकि जोरमथंगा ने हमेशा कहा है कि आपको हम एनडीए के साथ हैं, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम अकेले अपनी सरकार चला सकते हैं, हमको आर्थिक तौर पर और केंद्र की सरकार की जरूरत है, इसलिए वो एनडीए में है। लेकिन वो एनडीए में रहने के बावजूद उनके जैसा एलाई कोई नहीं है, और किसी एलाई में इतना दम नहीं है जो जितना जोरमथंगा दिखाते हैं, क्योंकि जोरमथंगा को पता है कि भैया जब वक्त आएगा तो मुझे मिजोरम की जनता को जवाब देना है, दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं देना है मुझे। एक लोकसभा की सीट है, अरे भाई तुम जीत जाओ चाहे हार जाओ, बीजेपी जीत जाएगी तो ना मिजोरम के सारे सरकार बनेगी, बीजेपी हार जाएगी तो ना इसकी सारी सरकार गिरेगी। लेकिन जोरमथंगा तो यही है ना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ आनंद जी, जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ सब मेरे से यही पूछ रहे हैं मणिपुर का क्या असर होगा मिजोरम। मैं बोला भाई मणिपुर 4 महीना पुराना इशू है भाई, मिजोरम तो 5 साल से इलेक्शन का इंतजार कर रहा है ना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पे लोकल इश्यूज भी होंगे जो ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर का असर तभी होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज में मतभेद होता है, मतभेद नहीं है क्योंकि, और बीजेपी जो, जहां तक बात बीजेपी की है, तो आपने जो शुरुआत में कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अगर नरेंद्र मोदी आएंगे भी तो भी वो उनका बेड़ा गर्क होना ही है, क्योंकि वो आके क्या बोलेंगे जो लोगों ने पहले नहीं सुना है, वो बात भी है ना। नहीं, मैं ठीक है, चलिए समय करीब करीब वी आर टुवर्ड्स द एंड। डॉक्टर रोल्टे, यू विल हैव द लास्ट वर्ड। Mizoram, 3rd December will decide that whether they have a decisive government or they have a fractured mandate, because there are indications that this time there will be no clear majority. People are thinking that there will be a fractured mandate and there will be a coalition government. This is what the people here in the North India, in Delhi and all are talking about. Just your last take. We all pray that Mizoram should be as beautiful as it was and as vibrant as it was. Something which, if you want to say in your concluding statement, please go ahead. Yeah. First, the vote counting was scheduled on Sunday, and it was requested to postpone. So hopefully it will be on Tuesday. Well, I am not on the ground of political battle, but my observation is only based on the media, news report, and then YouTube discussion, and so many other things. Yeah, in that, one of the major concern is that MNF may come back with a meager majority. If not, it may be a coalition government. Yes, because MNF anti-incumbency is very strong, but at the same time, because of this refugee
situation, because the Chief Minister Zoramthanga is handling the refugee, our brothers and sisters from our neighboring countries and states are welcome nicely. That may have a positive impact on him. So it may be a plus point for him. But at the same time, anti-incumbency feeling is also very strong. Yeah, I'm not a political analysis at all. Yeah, but at the I same understand. time, I understand is that. possibility. Yes, I understand that. Poison is a possibility. Yes. Yeah. Thank you so much, Dr. Alte, and we might bother you again because you're not a political analyst, but you are a citizen of this country. You're a citizen of Mizoram, and you must be casting a vote. So we hope that we get a good government in Mizoram. Thank you so much for joining. Thank you so much, Dr. Alte. Thank you.